الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، عزیز بھائیوں، بہنوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک بات ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں اعتدال اور توازن کی کمی ہے. اگر ایک انسان کسی کام میں لگا ہے تو دوسری طرف سے وہ بالکل بے پرواہ ہو چکا ہے، یعنی یہ کہ کوئی خوش اور مطمئن نہیں. بسا اوقات یہ ہے کہ عجیب بے کلی ہوتی ہے اور خود انسان اپنے اندر سے مطمئن نظر نہیں آتا ہے. کوئی سماج سیوا میں مصروف ہے تو کوئی اپنی ذات تک محدود ہے، کوئی لکھنے پڑھنے میں لگا ہوا ہے تو کوئی کاروبار دنیا میں بالکل مست ہو چکا ہے. کچھ لوگ دوستوں میں مگن ہیں تو بعض ایسے احباب ہیں جو اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالتے. کسی کو صرف پیسہ نظر آتا ہے تو کوئی مسجد میں بیٹھا نظر آتا ہے. یہ عام ہمارے سماج کی صورتحال ہے کہ جہاں بیلنس اور توازن کی کمی صاف اور کھلی نظر آتی ہے. جبکہ ہم اللہ کی کتاب پر، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں تو وہاں بے انتہا درجے کا توازن اور بیلنس اور اعتدال ہمیں نظر آتا ہے. ابتدا میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے سورۃ الرحمن سے پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اشارہ کیا ہے، اسی بات کو بتایا ہے کہ ہم نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کر دی. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، ٹھیک ٹھیک اور صاف صاف تولو. یعنی یہ پوری کائنات کا نظام انتہائی اعتدال پر اور توازن پر قائم کیا گیا ہے کہ اس کا ایک ایک سیارہ، ایک ایک ذرہ اپنی مدار کے اندر نہ صرف گردش کر رہا ہے بلکہ اس پورے کیلکولیٹڈ انداز میں گردش کر رہا ہے جیسا کہ اس کے رب نے اسے کرنے کا حکم دیا ہے. کوئی سیارہ ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں یہاں تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے. ایک کہکشاں دوسری کہکشاں میں جو ہزاروں کروڑوں ستاروں کے اپنے اندر سمائے ہوئے رہتی ہے، ایک کہکشاں دوسری کہکشاں سے داخل ہو کر نکل جاتی ہے لیکن کوئی سیارہ ٹکرانے نہیں پاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی بیلنس کے ساتھ اللہ نے اس کائنات کو قائم کیا ہے. ہم اپنے اطراف میں سورج اور چاند کے نظام کو تو دن اور رات ہم دیکھتے رہتے ہیں. اگر اسی پر غور کر لیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیسے توازن کے ساتھ دن کا، رات کا ایک ایک سیکنڈ کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. اور آج سے نہیں، آج سے 2 دن، 4 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے بعد نہیں، 50 اور 100 سال کے بعد سورج کی گردش کیا ہوگی، چاند کس مقام پر ہوگا، کیسے طلوع ہوگا، کب گرہن لگے گا، کب چاند پورا ہوگا اور کب چاند ابتدائی حالت میں ہوگا، یہ ساری چیزوں کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، اس کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے. یہ دراصل وہ توازن ہے، وہ بیلنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں قائم کیا ہے. پھر اندر یعنی اس کائنات سے آ کر اگر ہم اپنے جسم پر غور کریں، انسانی ساخت پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. جسم کا ایک ایک عضو، جسم کا ایک ایک حصہ انتہائی بیلنس انداز میں قائم کیا گیا ہے. آپ اپنے دونوں ہاتھ لے لیں، دونوں پیر لے لیں، آنکھوں کو دیکھیں، ناک دیکھیں، منہ، زبان، سر، پیر، ایک ایک حصے کو دیکھتے چلے جائیں تو انسان بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ انتہائی بابرکت ہے وہ ذات، انتہائی بہترین تخلیق کرنے والی ہے وہ ذات جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. یعنی یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی توازن کے ساتھ پیدا کیا. اور
यही मुसलमानों की उम्मत मुस्लिमा की शिनाख्त भी बताई। फरमाया कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नासि व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा, कि हमने उम्मत मुस्लिमा को उम्मत वस्त बनाया, दरमियान की चाल चलने वाली, औसत और वस्त की दरमियानी जिंदगी गुजारने वाली उम्मत बनाया। यानी यहाँ भी अल्लाह ताला ने तवाज़ुन कायम किया, एक तरफ झुकने और दूसरी तरफ से बेगाना होने की तबलीग नहीं दी गई, हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा की जो तख्लीक की, फरमाया कि पूरे के पूरे या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कामिल पूरे अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे और एक एक शोबे के साथ तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सरे तस्लीम खम कर दो, फिर दुनिया और आखिरत की भलाई दोनों को तवाज़ुन के साथ अल्लाह ताला ने हमारे सामने पेश किया, जो तालीम दी। फरमाया कि वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। यानी जो बात अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में मांगना है, उस देने वाले के दरबार में मांगना है, बख्शने वाले के दरबार में मांगना है, उसके सामने हाथ फैला कर मांगना है, उसके दरबार में गिड़गिड़ा कर मांगना है, तो वहाँ दुनिया की कामयाबी भी है और आखिरत की कामयाबी। ये तवाज़ुन की तालीम उम्मत मुस्लिमा को दी गई है, और यही दरअसल इस्लाम का मिजाज और उम्मत मुस्लिमा का मिजाज होना चाहिए। फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, कि ऐ मुसलमानों जो लोग ईमान लाए हो, तुम रास्ती की गवाह देने वाले, क़िस्त की, अदल की, तवाज़ुन की गवाही देने वाले बन जाओ। यानी ये उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। फिर फरमाया, हर जुमा में ये आयत बार बार और हमेशा हम सुनते हैं कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान, कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है अदल का, तवाज़ुन का, बैलेंस का, एतदाल का और एहसान का, बेहतरीन रविश अख्तियार करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है। फिर इसी के साथ साथ सूरतुल आराफ में बात इरशाद फरमाई कि कुल अमर रब्बी बिल क़िस्त, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मेरे रब ने मुझे क़िस्त का हुक्म दिया है, बैलेंस का, तवाज़ुन का, अदल व क़िस्त का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। और यही वो मामला है कि हुकूकुल्लाह का जहाँ तस्करा आता है, वहाँ पर हुकूकुल इबाद और खास तौर से वालिदैन की खिदमत का तस्करा आता है। ये जो तवाज़ुन की तालीम कुरान मजीद हमें बार बार देता है, वो दरअसल हमें मोल्ड करने के लिए, हमें तैयार करने के लिए, हमें रहनुमाई इस तरह की जाती है कि जहाँ पर तुम्हें जिंदगी के बहुत सारे मामलात में तवज्जो देनी है, जहाँ वहीं पर तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सर भी झुकाना है, जहाँ अल्लाह के हुकूक अदा करना है, वहीं बंदों के भी हुकूक अदा करना है। फरमाया कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, यानी ये अल्लाह ताला ने आपके और मेरे लिए फैसला कर दिया है। वक़ज़ा रब्बुका, अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की इबादत न करो मगर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। यानी जहाँ हुकूकुल्लाह का तस्करा है, वहाँ हुकूकुल इबाद का तस्करा है। ये वो तालीम है जो कायनात में भी मिलती है, हमारी अपनी ज़िंदगी में भी मिलती है, और कुरान के सफ़ात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और आपके इरशादात मुबारका से हमें मिलती है। अजीज सामईन, एक सवाल हम ये कर सकते हैं कि अदम तवाज़ुन, बेएतदाली, इम्बैलेंस किस चीज़ का नाम? इम्बैलेंस और अदम तवाज़ुन और अदम एतदाल, आप और मैं ज़िंदगी में बहुत सारे, अभी तो डिजिटल स्केल्स आ चुकी हैं, वरना एक ज़माने में जहाँ तराजू हुआ करते थे तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक पल्ले में जो कुछ डाला जाता है, वज़न का पैमाना, उसी के मुताबिक फिर आपको सामान दिया जाता। दोनों जब बराबर हो जाएं तो ये तवाज़ुन है। यानी जिसमें जितना वज़न डालना चाहिए उतना वज़न वहाँ पर डालें, तो ये ज़िंदगी के लिए तवाज़ुन है। अदम तवाज़ुन ये है कि इंसान एक तरफ झुक जाए। अगर आप बाजार में जाएं, 1 किलो का वजन वहां पर डालने के बजाय वो आधा किलो डाले और आपसे कहे कि यही दरअसल 1 किलो है, तो आप कभी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे और वो सामान आप कभी कबूल नहीं करेंगे, इसलिए कि आपने पैसा तो 1 किलो का दिया है, लेकिन आपका तराजू दूसरी तरफ झुका हुआ है और उस तरफ आपको नुकसान हो रहा है, तो आप कभी उसको कबूल नहीं करेंगे, उसको मानेंगे नहीं। मतलब ये कि अक्सर मसरूफियात एक काम के लिए हो जाए और दूसरा काम हमारी नज़रों से ओझल हो जाए, तो ये अदम तवाज़ुन है। एक के हुकूक की अदायगी हो और दूसरे के हुकूक की अदायगी को हम नज़रअंदाज कर दें। बीवी बच्चों के हुकूक तो अदा करें, माँ बाप को भूल जाएं, रिश्तेदारों के हुकूक तो अदा करें, पास पड़ोस के लोगों को भूल जाएं,
दोस्त अहबाब के साथ तो बड़ी अच्छी तरह, बड़ी मिलनसारी के साथ और दिल जमाई के साथ उनके साथ मामला करें, लेकिन अपने भाई बहनों को भूल जाएं, अपने बूढ़े वालिदैन को भूल जाएं, तो ये दरअसल अदम तवाजुन है, इम्बैलेंस है, जो जिंदगी को खराब और नाकाम करता है। अदम तवाजुन क्या? इत्तेदाल का न होना, तवाजुन का न होना दरअसल जुल्म है। जुल्म का जो डेफिनेशन दिया गया है वो ये है कि अज़्ज़ुल्मु वज़अउ शैउ फी गैरि महल्लिही। एक और डेफिनेशन में अल्फाज आए हैं कि फी गैरि मौज़िइही, यानी जुल्म ये है कि किसी चीज को उसके मुकाम से हटा दिया जाए। किसी चीज को जहां पर रहना है, जितना रहना है, जैसे रहना है, अगर उसके अंदर डिस्टरबेंस आ जाए, उससे कमी या ज्यादती हो जाए, तो दरअसल वो जुल्म है। और इत्तेदाल, बेइत्तेदाली नाम ही इस चीज का है कि जहां जितना देना था उससे या तो कम दिया या ज्यादा कर दिया। किसी का हक देना था तो उसमें हक में कमी कर दी, किसी को सजा देना था तो जितनी सजा देना था उससे ज्यादा सजा कर दी। तो ये कमी और ज्यादती दरअसल जुल्म है, और यही दरअसल अदम तवाजुन है। मतलब ये हुआ कि हमें जुल्म से बचना है तो एतदाल की रविश अख्तियार करनी पड़ेगी, बैलेंस की रविश अख्तियार करनी पड़ेगी, और इम्बैलेंस से अपने आप को बचना पड़ेगा। लेकिन मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए एक बात वजाहत कर दूं कि बाज़ खुसूसी हालात होते हैं, बाज़ इमरजेंसी की कैफियत होते हैं, उस वक्त इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस एक काम में लग जाए तो वो अदम तवाजुन और इम्बैलेंस में नहीं आता। मिसाल के तौर पर बच्चे साल भर तालीम हासिल करते हैं, जिंदगी में माँ बाप की खिदमत भी करना, नमाजों में हाजिरी भी देना, कुरान मजीद की तिलावत भी करना, खेल कूद को जाना, ये सारी चीजें उनकी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन जब इम्तिहान आए तो अपनी बहुत सारी मसरूफियात से वक्त कम करके इम्तिहानात पे ज्यादा तवज्जो देना इंतहाई जरूरी है। इसी तरह इंसान के जिंदगी में भी हालात आते हैं कि किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी के साथ कोई हादसा पेश आ जाए, तो इंसान अपनी बहुत सारी मसरूफियात को कम करके, उसकी कुर्बानी देकर, उसको कट करके जाकर उनकी तीमारदारी करें और खिदमत करें। ये खास हालात, ये इमरजेंसी की कैफियत तो अपनी जगह पर है, लेकिन आम हालत में, जिंदगी की आम कैफियत में बैलेंस को कायम रखना, तवाजुन रखना इंतहाई जरूरी है। जिंदगी में जो कुछ हमें करना है उसको हासिल करने के लिए उसकी जरूरत के मुताबिक वक्त देना, सलाहियत देना, माल खर्च करना, ये दरअसल तवाजुन है। सबके हुकूक ऐसे अदा करना जैसा कि उनके हुकूक अदा करने का हुक्म है कुरान मजीद में और नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। दो सहाबा का वाक़या आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भाई बनाया। हजरत सलमान एक मरतबा हजरत अबू दरदा के घर गए, देखा, और जब खाने का वक्त आया तो उन्होंने कहा मैं तो रोजा हूं। हजरत सलमान ने कहा कि रोजा खोलो और मेरे साथ खाना खाओ। रात जब आई तो हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए नमाज के लिए। हजरत सलमान ने कहा कि सो जाओ। दूसरी मरतबा उठे, उन्होंने कहा कि सो जाओ। जब आखिरी पहर आ गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब उठो और तहज्जुद की नमाज पढ़ो, अल्लाह के बारगाह में खड़े हो। और फिर उसके बाद हजरत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न व लिरब्बिका अलैका हक़्क़न व लिज़ैफ़िका अलैका हक़्क़न व इन्ना लिअहलिका अलैका हक़्क़न फ़अती कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू। तुम्हारे अपने ऊपर तुम्हारी अपनी जात का भी हक है, तुम्हारे अपने रब का भी हक है, तुम्हारे अपने मेहमानों का भी हक है, और तुम्हारे अपने घर वालों का भी हक है। जिसका जितना हक है वो हुकूक अदा करो। रात भर नमाज पढ़ना लाजमी नहीं है, अपनी बीवी के लिए वक्त निकालना भी जरूरी है, अपने बच्चों के लिए वक्त निकालना भी जरूरी है, अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए वक्त निकालना भी जरूरी है, अल्लाह के दरबार में खड़े होकर रुकू और सुजूद के लिए वक्त निकालना भी इंतहाई जरूरी है। यानी बैलेंस ये है कि इंसान हर हैसियत को याद रखे और उसके मुताबिक हुकूक को अदा करे। फिर हजरत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि फ़ाती कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, कि जिसका जितना हक है उस हक को अदा करो। फिर अब ये दोनों दूसरे दिन जब नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, फ़ज़करा ज़ालिक, ये जो पूरा वाक़या था उसको सुनाया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़ाल लहू सदक़ सलमान, कि सलमान ने सही बात की, सच्ची बात की। यानी ये वो पैमाना है जो इस्लाम तवाजुन का, बैलेंस का आपके और मेरे हाथ में देता है और आपके और मेरे लिए फराहम करता है। अजीज सामीन, ये सवाल हम कर सकते हैं कि ये बैलेंस क्यों जरूरी है?
یہ بیلنس سے کیا فائدہ مجھے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو بڑی آسان بات یہ ہے کہ بیلنس اور توازن اور اعتدال کے ذریعے سے ہم زندگی سے بھرپور استفادہ اٹھا سکتے ہیں، بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ورنہ انسان اگر ایک طرف جھک جائے، کاروبار میں اتنا مست ہو جائے کہ نہ اس کو بیوی بچے یاد ہو، نہ رات کی نیند یاد ہو، نہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا یاد ہو، نہ تلاوت قرآن یاد ہو، نہ اپنی صحت کا وہ خیال رکھے، تو پھر ایسی زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ ایسی کمائی کا، پیسے کا فائدہ کیا ہے جو انسان کی صحت برباد کر دے، رشتہ داریاں برباد کر دے، تعلقات برباد کر دے، اللہ کے سامنے وہ ناکام ہو جائے؟ تو ایسے کاروبار کا اور ایسی آمدنی کا فائدہ کیا ہے؟ توازن، اعتدال اور بیلنس کے ذریعے ہم ان تمام محاذ کے اوپر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ زندگی کا جو مقصد ہے، جو کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسے حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم نے اپنی زندگی میں توازن اور عدل قائم کیا۔ آئیے آپ اور میں دیکھیں کہ آپ کی اور میری حیثیت کیا ہے۔ کیا ایک انسان کی، ایک 40 سالہ انسان کو لے لیں تو کیا صرف وہ باپ ہے؟ نہیں، اس کی بہت ساری حیثیتیں ہیں۔ کہیں پر وہ باپ ہے تو کسی کے سامنے وہ بیٹا ہے، کہیں پر وہ شوہر ہے تو وہ کسی کا دوست ہے، کہیں پر وہ کاروبار کرنے والا ہے، کسی کے ماتحت ہے تو بہت سے لوگ اس کے ماتحت دیے گئے ہیں، اس کا کوئی پڑوسی ہے تو وہ کسی اور کا پڑوسی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں ہماری بہت ساری اور مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ان تمام حیثیتوں کے مطابق اس میں جو ذمہ داریاں اور فرائض ہمارے ہیں اس کو ادا کرنا اور اس حیثیت کو پوری کرنا دراصل توازن ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس حیثیت میں رکھا ہے اس حیثیت میں وہ اپنا کردار ادا کرے تو پھر وہ دراصل زندگی میں توازن قائم کر سکتا ہے۔ جس طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں باپ کی حیثیت سے تو انصاف کروں گا لیکن شوہر کی حیثیت سے انصاف نہیں کروں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے معاملہ گھر کا ہو، سماج کا ہو، اللہ کا ہو، اللہ کے دین کی خدمت کا ہو، ہر محاذ پر ہمیں کوشش کرنا ہے اور اسی ایک زندگی میں کوشش کرنا ہے۔ ساتھ پنرجنم کا کوئی تصور ہمارے پاس نہیں ہے۔ بار بار کبھی کیڑا پیدا ہو رہے ہیں، کبھی مکوڑا ہو رہے ہیں، کبھی انسان ہو رہے ہیں، کبھی نیچ ذات ہے، کبھی اونچی ذات ہے۔ یہ باطل تصور الحمدللہ اسلام میں نہیں ہے، نہ قرآن سے ملتا ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ان ساری حیثیتوں کے ساتھ انصاف کرنے کا ہمیں ایک ہی موقع ملا ہے۔ اگر اس موقع کو خدا نخواستہ ہم نے گنوا دیا تو پھر کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے۔ ایک اور سوال کہ کیا میرا کوئی بدل ہو سکتا ہے؟ میں کہیں پر شوہر ہوں، کہیں پر باپ ہوں، کہیں پر بیٹا ہوں، کہیں پر پڑوسی ہوں، تو کیا میرا کوئی بدل ہو سکتا ہے؟ آپ میں سے کسی بھائی کا، کسی بہن کا کوئی بدل ہو سکتا ہے؟ تو ہرگز ممکن نہیں ہے، نہ سماج میں، نہ گھر میں، نہ عبادت میں، نہ دین کی خدمت میں۔ ہر جگہ کا کام آپ کو کرنا ہے اور میرا کام مجھے کرنا ہے، میرا کوئی بدل نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قرآن نے صاف صاف کہہ دیا کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا، کوئی کسی کی طرف سے جواب دینے والا، کوئی کسی کی طرف سے صفائی پیش کرنے والا کل کوئی اللہ کے دربار میں نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر فرد کو اپنا کام کرنا ہے، ہر حیثیت میں کرنا ہے اور کل اللہ رب العالمین کے سامنے اسی حیثیت میں جواب دینا ہے۔ آئیے یہ دیکھیں کہ توازن اور زندگی میں اعتدال، بیلنس اور توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے اپنی زندگی کے مقصد کو متعین کر لیں۔ بے مقصد زندگی میں کبھی توازن نہیں ہو سکتا۔ کبھی انسان ادھر دوڑے گا، کبھی ادھر دوڑے گا، کبھی وہاں گرے گا، کبھی یہاں گرے گا۔ بے مقصد زندگی میں کبھی توازن قائم نہیں ہو سکتا۔ اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ زندگی کا مقصد ایک مومن کا، ایک مسلمان کا صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کر لے اور اس کو راضی کرنے کے ذریعے سے جنت کے حصول کی کوشش کرے۔ اور اگر یہ مقصد ہماری زندگی کا بن جائے تو ہماری تعلیم میں بھی بیلنس ہوگا، ہمارے کاروبار میں بھی بیلنس ہوگا، ہماری دوستیوں میں بھی بیلنس ہوگا، ہماری رشتہ داریوں میں بھی بیلنس ہوگا، ہمارے لینے میں بیلنس ہوگا، ہمارے دینے میں بیلنس ہوگا، ہماری محبت میں بیلنس ہوگا، ہماری دشمنی میں بیلنس ہوگا۔ ہر جگہ اعتدال قائم ہوگا اگر ہم نے اللہ رب العالمین کو اپنا مطمع نظر بنا لیا، اس کی طرف سے آنے والی ہدایات کو اپنے سامنے رکھا اور اسی کو لٹمس ٹیسٹ بنا لیا، اسی کو معیار
मेयार बना लिया तो फिर जिंदगी में तवाज़ुन कायम होगा, जिंदगी में हम आहंगी पैदा होगी और हर एक के हुकूक अदा करने के जरिए से, हम हर एक के बारे में अच्छी राय कायम करने के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में कामयाबी की उम्मीद कर सकेंगे। अमली इक़दामात के सिलसिले में चंद बातें मैं आपके सामने रखते हुए अपनी गुफ्तगू को, खुतबे को ख़त्म करता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि अपनी ज़िंदगी की तरजीहात को तय करें। Who I am, what I want to achieve, मैं कौन हूँ, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। बेमकसद जिंदगी और विदाउट प्रायोरिटीज, बगैर तरजीहात की जिंदगी में इंसान हर दूसरे दिन हसरत का शिकार होता है कि काश मैं वो कर लिया होता तो मुझे ये हासिल हो जाता, काश मैं फलां चीज किया होता तो मुझे ये फायदा होता। ये इसलिए होता है कि इंसान बगैर मकसद के और बगैर तरजीह के, बगैर प्रायोरिटी के जिंदगी गुजारता है। तो जो प्रायोरिटीज इंसान तय करेगा उसके मुताबिक उसकी जिंदगी में बैलेंस आएगा। और नंबर 2 ये कि हकीकत पसंद बनिए। ख्याली जिंदगी गुजारने से कभी जिंदगी में तवाज़ुन कायम नहीं हो सकता। जिंदगी में बैलेंस और तवाज़ुन कायम करने के लिए दुनिया की जो हकीकतें हैं, जो कुरान ने, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने पेश की हैं, उसका इदराक, उसको जानना और उसको समझना इंतहाई जरूरी है। और नंबर 3 ये कि इंसान नहीं, नो कहने का फन सीखे। बहुत से मौके पर जिंदगी में अदम इत्तेदाल और अदम तवाज़ुन इसलिए आता है, बेइत्तेदाली इसलिए आती है कि हम किसी काम को नहीं कर सकते हैं लेकिन नो कहना नहीं जानते। मैं नहीं कर सकता नहीं ये कहना नहीं जानते, हर चीज को कबूल करते चले जाते हैं, हर चीज अपने सर पे लादते चले जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि किसी काम में पूरे नहीं उतर सकते और कोई काम हम पूरा नहीं कर सकते। तो जिंदगी की कामयाबी में और तवाज़ुन में एक चीज इंतहाई जरूरी है कि हम हस्बे जरूरत, हर काम को नहीं, हर चीज का इनकार सही नहीं है, लेकिन जो हम नहीं कर सकते हैं उसके बारे में हम सही तौर पर कहें कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं। और नंबर 4 ये कि जिंदगी का मंसूबाबंद काम करने की आदत डालिए। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 1 नहीं 2 नहीं 50 वाकया सुनाए जा सकते हैं कि जिसमें इंतहाई मंसूबाबंद अंदाज में आपने काम किया। हिजरत का वाकया ले लें, गज़वात का वाकया ले लें, ताइफ में तबलीग का काम ले लें, मदीने में अपने नुमाइंदे भेजने का काम ले लें, हर काम इंतहाई मंसूबाबंदी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। फिर एक और अहम बात, 5वां नुक्ता ये कि अपने घर में इत्तेदाल और तवाज़ुन कायम करने के लिए अपनी मिसाल, अपना मॉडल पेश करें। हम अपने बच्चों से तवक्को करें कि वो बैलेंस कायम करे, हम अपनी बीवी से तवक्को करें कि वो हमें भी खुश करे, घर के सारे काम भी करे और हर चीज सफाई सुथराई के साथ हो। लेकिन मेरी अगर अपनी जिंदगी में तवाज़ुन नहीं हो तो हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे अपने घर वाले कभी भी उस रास्ते के ऊपर नहीं चल सकते हैं। तो दूसरी 5वीं चीज ये कि हम अपनी मिसाल कायम करें। और 6ठी चीज ये है कि हम अपना जो भी काम करें पूरा दिल लगा कर करें। अदम तवाज़ुन की एक अहम वजह यह भी है कि इंसान अपने काम बेदिली से करता है, हाके पुकारे करता है, जबरदस्ती में करता है। उस कैफियत से बाहर निकलकर दिल जमई के साथ काम करें। 7वीं और आखिरी पॉइंट जो मैं इस सिलसिले में रखना चाहूंगा वो ये है कि अल्लाह ताला ने आपको और मुझको बहुत सारे वसाइल दिए हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस अल्लाह ताला ने दिए हैं। हमको माल दिया है, हमको वक्त दिया है, हमको सलाहियतें दी हैं, रिश्तेदारियां दी हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस अल्लाह ताला ने दी हैं। तो उनको तवाज़ुन के साथ बेहतरीन इस्तेमाल अगर किया जाए तो हमारी जिंदगी में तवाज़ुन कायम हो सकता है। एक दरमियान में मैंने आपके सामने बात रखी थी, आखिरी बात उसी को दोहराते हुए मैं अपने खुतबे को खत्म करूंगा। वो ये है कि जिंदगी की हकीकत और बहुत कड़वी हकीकत ये है कि ये जिंदगी हमें एक ही बार मिली है। और इसका दूसरा पहलू यह है कि ये जिंदगी का दिया कब बुझ जाए, कब खत्म हो जाए, ये रोशनी कब गुल हो जाए, कोई माई का लाल नहीं जानता, कोई फर्द इसको जान नहीं सकता। तो इसके लिए जरूरी है कि इस जिंदगी के जो दिन और साल हमारे सामने हैं उसको गनीमत जानते हुए हम अपनी इस जिंदगी को सही इस्तेमाल करें, या अदल के साथ और तवाज़ुन के साथ अगर इस्तेमाल करें तो फिर दुनिया में भी कामयाबी हो सकती है और आखिरत में भी कामयाबी की तवक्को की जा सकती है। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम फिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन क़दीमुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीमुन व रब्बुन हलीम।